Welcome back to Tide and Loam. I am your instructor Hassaan, and in this video we are going to study the second part of the topic plastids. In the first part we studied the detail of chloroplast और इस part में हम study करेंगे chromoplast और leucoplast को. So let's start, but first of all let me revise you the whole structure of chloroplast. Now this is the structure of chloroplast and this one is the like chloroplast एक double membrane से bound होता है, so this one is outer membrane and this one is inner membrane, or between outer or inner membrane there is an intermembrane space. Inside chloroplast the fluid is present and this fluid is called stroma. The fluid present inside the chloroplast is called stroma and it contains ribosomes. As you can see here, these dots are ribosomes and DNA rings. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्ट्रोमा की कंपोजिशन में DNA और ribosomes होते हैं. Now here we have these stalks and these stalks are called, ये जो membrane stalks हैं, these stalks are called granule thylakoids या फिर granum, or in each of these membrane and each of these sacs are called thylakoids, or in their inside there is a space which is called thylakoid space. और thylakoid membrane में क्या होते हैं? Thylakoid membrane में होता है photosynthetic pigment which is called chlorophyll. So this is the structure of chloroplast. It is bound by a double membrane, outer membrane, inner membrane, और दोनों membranes के दरमियान जो space है, it is called intermembranum space. Inside there is a fluid which is called stroma. Stroma में nucleoid होता है which is actually DNA rings and ribosomes, and these stalks of membranes are called granum, or inside granum, in granum is made up of membrane sacs which are called thylakoids. और thylakoid membrane में क्या होता है? Chlorophyll, which is the photosynthetic pigment. So let's start today's topic, which is actually chromoplast. So about chloroplast, के chloroplast तो green होते हैं, but chromoplast are not green, they are colored. They are of many different colors. They are of bright colors. Plastid containing pigments are called carotenoids. जिस तरह क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट था क्लोरोफिल और उनका कलर ग्रीन था, इस तरह क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स हैं, these pigments are called carotenoids and these are of bright colors. Chromoplasts are present in the cells of flower petals and fruits. So chloroplast जो है वो plant cell के green parts में present है, but the chromoplast is present in flower petals, फूल की पत्तियों में present, and the fruit, जो fruit की colored skin होती है, chromoplast are present in those cells. They give color to these parts. Obvious सा function है कि chromoplast का function है प्लांट के इन पार्ट्स को लाइक फ्लावर और फ्रूट को कलर देना, एंड दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स. सो बेसिकली ये जो फ्लावर के जो कलर्ड ब्राइट कलर्स होते हैं और फ्रूट के जो ब्राइट कलर्स होते हैं, दे अट्रैक्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, और जब इंसेक्ट्स इन फूलों पर या इन फ्रूट्स पर बैठते हैं सो दे कैरी पोलन ग्रेन्स which is actually the process of pollination. ये पोलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन का प्रोसेस होता है. So the bright color of these flower petals is responsible for the process of pollination. और ये bright colors किसकी वजह से हैं? इन special pigments की वजह से, which are called carotenoids and they are present inside chromoplast. So chromoplasts are the plastid which contains pigments and bright colored pigments, and they are present in flower petals and fruits, and they give color to these parts and ultimately help in pollination and dispersal of fruit. So लेक्चर को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इस टॉपिक को थोड़ा और इंटरेस्टिंगली समझने के लिए मैंने कुछ इमेजेस गैदर किए हैं डिफरेंट प्लांट्स और फ्रूट्स की. So let's see them and understand the topic of chromoplast. So this first plant, ये जो आप देख रहे हैं ना, this is called Lismacia, और इसके जो petals हैं, this pink colored petals, ये जो पिंक कलर है ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से है, ये कैरोटिनॉइड्स की वजह से है. This second image is of toad flax,
और स्टोर्ड फ्लक्स का ये जो येलो कलर है, दिस इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. Here we have another picture of the plant cell. It is called rhinanthus. और इस rhinanthus plant का ये जो येलो और ऑफ वाइट कलर है, this is because of chromoplast. और ये एक और इमेज है फ्लावर की, एंड इट्स पिंक कलर. इस पे जो थोड़ा सा पिंक और पर्पलिश कलर जो है ना, दिस कलर इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. नाउ द रेड कलर ऑफ दिस प्लांट एंड इट इज कॉल्ड जीनिया. इस प्लांट का नाम जीनिया है, और इसके जो पेटल्स का ये जो कलर है, ये किसकी वजह से है? ऑफ कोर्स ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से है. नाउ नेक्स्ट वी हैव एलेस्ट्रोमेरिया. और इस एलेस्ट्रोमेरिया प्लांट का ये जो येलो और ऑरेंज कलर है, और उसके ऊपर ये जो ब्राउन लाइनिंग्स है, ऑल दीज कलर्स आर बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. दिस प्लांट इज कॉल्ड पैसिफ्लोरा. और इस पैसिफ्लोरा प्लांट का व्हाइट और पर्पल कलर किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से. इस प्लांट का पिंक कलर, दिस प्लांट इज कॉल्ड ब्राउन नैपवीड. अच्छा, इसे ब्राउन नैपवीड तो कहते हैं, बट इट्स कलर इज नॉट ब्राउन and its color is pink, and this pink color is because of chromoplast. This is called triglottis. और इस triglottis का पर्पल कलर और ये जो ब्राउन डार्क पर्पल कलर है, this is also because of chromoplast. This is called jade wine. और इस jade wine का ये जो ब्लू कलर है, ये किसकी वजह से है? ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से है. Now this plant is called ओपियम पॉपी फ्लावर. और इस ओपियम पॉपी फ्लावर का व्हाइट कलर किसकी वजह से है? ऑफ कोर्स क्रोमोप्लास्ट की वजह से. सो जितने भी हमने अभी फूल देखे हैं, इन तमाम फूलों के अंदर ये जो कलर्स हैं, अलग अलग तरह के कलर्स हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट. और क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स हैं, दीज पिगमेंट्स आर कैरोटिनॉइड्स. Now, as you can see here, of this flower, इस flower का ये जो pink, dark, purple color है, this is because of what? This is because of chromoplast. ये सारे colors chromoplast की वजह से हैं. Now, next we will see the images of few fruits. क्योंकि अभी हमने कुछ फूलों की images देखी हैं, अब हम कुछ fruits की images देखते हैं कि chromoplast. ओके और अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इन ये फ्रूट्स, दीज आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रूट्स दैट वी हैव नॉट सीन इन आवर सराउंडिंग्स यूजुअली. दिस फर्स्ट फ्रूट इज कॉल्ड पर्पल मैंगोस्टीन. और इस पर्पल मैंगोस्टीन का ये जो कलर है, दिस कलर इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. हियर वी हैव अनदर फ्रूट एंड दिस फ्रूट इज कॉल्ड बुद्धा's हैंड. एंड इस फ्रूट का ये जो येलो कलर है, दिस इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. नेक्स्ट वी हैव, अच्छा, इस फ्रूट का नाम है पैशन फ्रूट. और इस पैशन फ्रूट का ये जो कलर है, ये किसकी वजह से है? दिस कलर ऑफ पैशन फ्रूट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. दीज आर जेनिपर बेरीज. और जेनिपर बेरीज का ये जो ब्लू कलर है, ये किसकी वजह से है? ऑफ कोर्स दिस कलर इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. एंड देन वी हैव रैम्ब्यूटन. और इस रैम्ब्यूटन का ये जो रेड कलर है, ये किसकी वजह से है? ये रेड कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से है. दिस इज एन अफ्रीकन कुकम्बर. और अफ्रीकन कुकम्बर का ऑरेंज कलर भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से है. एंड दिस इज आचा चाचा. इस फ्रूट का नाम है आचा चाचा. और इसका ये जो कलर है ना, ये ऑरेंज और व्हाइट कलर, दिस कलर इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. एंड दीज आर जावा एप्पल्स. और जावा एप्पल्स का ये जो ऑफ वाइट और पिंक कलर है, ये भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से है. सो द पर्पज ऑफ शोइंग यू ऑल दीज इमेजेस एंड फ्रूट्स इज दैट कि ये जो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और फ्लावर्स है, और इनमें जो वैरायटी ऑफ कलर्स है, जो कलर्स की डाइवर्सिटी है, दीज आर बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट. और क्रोमोप्लास्ट में मौजूद कैरोटिनॉइड्स की वजह से है. सो लेट्स कम बैक टू आवर लेक्चर. द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ल्यूकोप्लास्ट. एंड दिस इज द थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स. ये प्लास्टिड की थर्ड और लास्ट टाइप है. दीज आर द इमेजेस ऑफ रूट्स. दीज इमेजेस आर टेकन फ्रॉम द रूट्स. और रूट सेल्स में ये जो आप देख सकते हैं ना, ये द स्ट्रक्चर्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? दीज आर प्लास्टिड्स विद नो पिगमेंट्स. इनमें कोई पिगमेंट भी नहीं है. दे आर कलरलेस एंड दे स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. सो ल्यूकोप्लास्ट का काम है फूड को स्टोर करना. क्लोरोप्लास्ट का काम है फूड बनाना. क्रोमोप्लास्ट का काम है प्लांट को कलर प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा और पोलिनेशन के प्रोसेस में मदद मिलेगी. और ल्यूकोप्लास्ट का काम है फूड को स्टोर करना. और किस तरह की फूड को स्टोर करना? स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स.
It is present in the cells of parts of plant where food is stored. अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट के सेल प्लांट के किन पार्ट में होगा? लाइक क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट के उन पार्ट्स में होगा जो कि ग्रीन है. क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स के उन पार्ट्स में होगा जो कि कलर्ड है, लाइक फ्लावर पेटल्स एंड लाइक फ्रूट स्किन. और ल्यूकोप्लास्ट प्लांट सेल के उन पार्ट्स में प्रेजेंट है विच आर कलरलेस एंड विच एक्चुअली स्टोर फूड. फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड स्टेम्स, यानी कि जमीन के नीचे जो प्लांट का हिस्सा होगा उनमें प्रेजेंट है. दे आर प्रेजेंट इन सीड्स, दे आर प्रेजेंट इन रूट्स. So what are leucoplasts? They are plastids with no pigments. They store starch, protein and lipids. So they store food and they are present in the storage parts of plants. अब leucoplast की 3 types हैं. The first type is amyloplast which stores starch. So leucoplast की वो type जो स्टार को स्टोर करे, these are called amyloplast. And the type of leucoplast which store lipids are called alloplast. So leucoplast की वो type जो lipids को store करेंगे, these are called alloplast. And the third type is proteinoplast which store proteins. Of course नाम से ही पता चल रहा है. So जो ल्यूकोप्लास्ट की वो टाइप जो स्टार को स्टोरेज करे आर कॉल्ड एमिलोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट की वो टाइप जो लिपिड्स को स्टोर करे आर कॉल्ड एलियोप्लास्ट. और ल्यूकोप्लास्ट की वो टाइप्स जो प्रोटीन्स को स्टोर करे आर कॉल्ड प्रोटीनोप्लास्ट. एंड हियर कम्स आवर लेक्चर ऑफ ल्यूकोप्लास्ट टू कंक्लूजन. लेट मी रिवाइज यू द होल हायरार्की ऑफ दीज प्लास्टिड्स. सो सबसे पहला, प्लास्टिड्स एक्चुअली बनते कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ प्रोप्लास्टिड. दिस इज अ प्रोप्लास्टिड. किसी भी प्लास्टिड के बनने से पहले जो सेल का स्ट्रक्चर है ना, दिस इज अ प्रोप्लास्टिड. और इस प्रोप्लास्टिड से बनता है एटियोप्लास्ट और उस एटियोप्लास्ट से बनता है क्लोरोप्लास्ट. यानी कि प्रोप्लास्टिड डिवाइड होता है, डेवलप करता है और जस्ट इसका जो नेक्स्ट फेज है दिस इज कॉल्ड एटियोप्लास्ट. और एटियोप्लास्ट से जो स्ट्रक्चर बनता है इट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. प्रोप्लास्टिड से 2 तरह के प्लास्टिड्स बनते हैं. द वन इज क्लोरोप्लास्ट एंड द अदर इज ल्यूकोप्लास्ट. और ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज परफॉर्म करना. अब जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर से क्लोरोफिल निकाल दिया जाए, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, ग्रीन पिगमेंट खत्म हो जाएगा, देन इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू क्रोमोप्लास्ट. सो क्रोमोप्लास्ट आर फॉर्म्ड बाय क्लोरोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट से 3 तरह के प्लास्टिड्स बनते हैं. एमिलोप्लास्ट विच स्टोर स्टार्च, एलियोप्लास्ट विच स्टोर लिपिड्स एंड प्रोटीनोप्लास्ट विच स्टोर प्रोटीन्स. So you don't have to memorize it, you can learn it just for fun. के प्रोप्लास्टिड से सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट बनता है, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट से बनता है और ल्यूकोप्लास्ट की 3 टाइप्स हैं, एमिलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट which store starch, lipid and proteins respectively. And this concludes our lecture. Thank you for watching.